اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی بیدار کرنا چاہتا تھا اور الحمدللہ یوسف بھائی آئے اور ہمیں بھی بیدار کیے اور مجمع کو بھی بیدار کیا۔ اب یہ وقت ہے حضرت مولانا داؤد صاحب کا۔ لوہا اس وقت گرم ہے، تقریر زبردست ہونی ہے، آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ یہ بات کہوں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو پار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میں منور رانا نے اسی موقع پہ بات کہی تھی کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجیے روشنی بڑھ جائے گی، اور بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھا، ماں نے جب گود میں اٹھایا تب آسمان چھوا۔ کہہ دو بھائی سبحان اللہ۔ ماں نے جب گود میں اٹھایا تب آسمان چھوا۔ آئیے عظمت بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ کا مائک بہت اچھا ہے۔ ہمارا مقرر، ہمارا اچھا مقرر، سچا مقرر، جو بھی بہت ہی نیک ہے، بہت دل کا اچھا ہے اور سب سے محبت کرنے والا ہے، چہرے پہ اچھی اور کامیاب مسکان ہے، وہ ہے ہم سب کے کرم فرما ذی محترم مکرم حضرت مولانا داؤد صاحب القاسمی دامت برکاتہ عالیہ، استاد عربی مدرسہ بیت العلوم گنگا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان وسندنا مولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، حفاظ اکرام اور تمام ماں بہنیں، باہر سے آنے والے تمام مہمانان اکرام، جس آیت کریمہ کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں یہ اہل خانہ جناب بھائی محمد یوسف صاحب، بھائی نسیم صاحب، بھائی محمد شکیل صاحب، یہ حضرات ایسے آدمی ہیں، کوئی بھی کے یہاں کام ہو، پروگرام ہو، کچھ ہو تو یہ حضرات اللہ اس کے رسول کے نام کے ذریعے سے اس کام کی شروعات کرتے ہیں، اور جس نام کی شروعات اللہ اس کے رسول کے نام کے ذریعے سے کی جائے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تقریباً گنگا پوروا میں تمام گھر ایسے ہیں جو کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، تو اس کے سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا انعقاد ضرور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کو ذرا گہرائی سے سمجھیں۔ یہ ہر جلسے اور ہر میلاد، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کانفرنس ہو یا جلسہ ہو یا میلاد ہو، وہ چاہے عالم ہو، وہ چاہے وہ طالب علم ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے۔
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि ऐ दुनिया के लोगों, हमने अपने महबूब की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बनाया। इस आयत को समझना पड़ेगा, इसकी तफसीर को पढ़ो, इसकी तफसीर को समझो कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह अपने महबूब के बारे में हम लोगों से क्या चाह रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ दुनिया के लोगों, हमने अपने महबूब की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बनाया है। वो चाहे तुम्हारी बचपन की जिंदगी हो, चाहे वो जवानी की जिंदगी हो, चाहे वो बुढ़ापा की जिंदगी हो, चाहे जिस शोबे की जिंदगी हो, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, इससे हटकर कोई काम नहीं करना। क्योंकि यही वो आयत है, इस आयत पर हजरत सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन अमल करते थे, वो कामयाब हो जाते थे। और यही आयत आज हमारे पास है, जो हम बेअमल हैं, गुमराह हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इस आयत को समझना पड़ेगा कि आयत हमसे कह क्या है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये जो आयत है हमको बार बार दस्तक देती है कि ऐ लोगों, ये कुरान का छोटा सा एक टुकड़ा है जो कुरान का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन अपने महबूब की सीरत को लोगों के सामने खोल कर सुनाना चाहता है कि मेरे महबूब की जिंदगी हर कदम पर नमूना है। आप ये ना समझे कि नमाज पढ़ना ही नमूना, रोजा रखना ही नमूना, ज़कात देना ही नमूना है। अरे नमाज पढ़ना ही मेरे महबूब का नमूना है, ज़कात देना भी मेरे महबूब का नमूना है, हज करना भी मेरे महबूब का नमूना है। मेरे भाइयों, उसके अलावा और भी नमूने हैं, जैसे अकीका करना ये भी रसूलुल्लाह का नमूना है, और जैसे शादी करना ये भी प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम नमूना है। अब आदमी जब उनके नाम से काम शुरू करता है तो इसलिए कि इस नाम के जरिए से हम काम शुरू करते हैं तो बरकतें होंगी। मेरे भाइयों, अगर बरकत के तौर पर हमने कोई काम शुरू किया है नबी के नाम से, तो उस पे अमल किया जाए, कोई खुराफात न की जाए। जिस काम में कोई खुराफात होती है उस शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उस पर अल्लाह की लानत बरसा करती है। उलमा ने लिखा है, जो मेरी महबूब की शरीयत में न मिले और कोई अपने पास से उसको करने लगे, जैसे फजूल, नाच, नौटंकी, बीसियार, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रसूल पाक के तमाम सहाबा का तौर तरीका नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाच गाने से बचो, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते कसरत से लानत करते हैं नाच गानों से। इसलिए इस तफसीर को समझना पड़ेगा कि हम क्या थे और क्या है। हम तो वो हैं कि जिधर आवाज बुलंद करते थे, जिधर निगाह उठाते थे, हम तो वो हैं कि शेरों ने हमको सवारी दी। उलमा ने लिखा है कि शेर हराम खोर को खाता है, हलाल खोर को नहीं खाता है। शेर जो है हराम खोर को खाता है, हलाल खोर को नहीं खाता है। उलमा ने लिखा है, एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मार्के के लिए निकले और वहां अपने साथियों से पिछड़ गए, जंगल पहुंच गए। इतने में देखा कि उधर से शेर गरजता हुआ आ रहा, शेर गरजता हुआ आ रहा, और जैसे ही उनके सामने आया और दहाड़ने लगे। उन्होंने फरमाया कि ऐ शेर, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। इतना कहना था कि वो शेर दुम हिलाने लगा। उसका मतलब ये था कि अगर तू आका का गुलाम है तो मैं भी उन्हीं का गुलाम हूँ। आ मेरी पीठ पे सवार हो जा, मैं तुझे मदीना छोड़ आऊं चल के। मेरे भाइयों, जो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जाता है, अल्लाह उसके पिवज में अपनी तमाम चीजों को उसके गुलाम बना दिया करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु, आज लोग कहते हैं कि हम नबी जैसे काम कहाँ कर पाएंगे, नबी जैसे नमाजें कहाँ पढ़ पाएंगे, सहाबियात जैसे रोजे नमाजें तिलावत हम कहाँ कर पाएंगे। अरे मेरे भाइयों, हम खूब जानते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नकल तो कर ही सकते हैं। अगर असल हम नहीं कर सकते हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरीके से पूरी रात मुसल्ले पे नहीं खड़े
ان کی نقل تو کر ہی سکتے ہیں. اگر ان کے طریقے سے ہم اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ان کی نقل تو ہم کر ہی سکتے ہیں. ہم اپنی غلامی کا ثبوت تو دے ہی سکتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کیا نہیں تھا؟ محبوب کے بس میں تو سب کچھ تھا. محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے کہ اے اللہ مجھے پھلا چیز کی خواہش ہے, اے اللہ مجھے پھلا چیز چاہیے, تو میرے بھائیوں اللہ رب ذوالجلال کی قسم میرے محبوب کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ پہاڑوں کو سونا بنا دیتا. لیکن میرے محبوب نے اپنے غریب لوگوں, غریب امتوں کی خبر رکھی. یہ غریبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تھی امت کی غریبی. لیکن آج ہماری امت کے لوگ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لوگ محبوب کی سنت کو نہیں پہچانتے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں, وہ چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے بچے ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھے ہو, چاہے جس طبقے کے ہو, سنو میرے آقا کی شریعت کو ابو لہب کی نظر سے نہ دیکھو. میرے آقا کی شریعت کو ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھو. میرے آقا کی شریعت کو حضرت ابوبکر صدیق کی نظر سے دیکھو. میرے آقا کی شریعت کو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو. میرے آقا کی شریعت کو عمر فاروق کی نظر سے دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو علی مرتضی کی نظر سے دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو حسنین کریمین کی نظر سے دیکھو. اور میری ماں بہنیں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیمہ نسرین کی نظر سے نہ دیکھیں. میری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ نمونہ ہے, امت کے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, ولادت ہوئی تو 100 اونٹ قربان کر دینے والا ابو لہب تھا. ابو لہب 100 اونٹ قربان کر دینے والا, حضور کی پیدائش پہ ابو لہب 100 اونٹ قربان کر دینے والا تھا. مکے کا سردار بھی تھا, خوبصورت بھی تھا, اور مکے میں اس کا دبدبہ بھی چلتا تھا. اور حضور کا سگا چچا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب خوشی سے اچھل گیا اور ولادت کی خوشی پر 100 اونٹوں کو قربان کر دیا. لیکن اس کا 100 اونٹ قربان کرنا کام نہ آیا, مکے کی سرداری کام نہ آئی, مکے کی دبدبہ کام نہ آیا. کیوں؟ دل میں عشق نبی نہیں تھا, دل میں نبی کا ایمان نہیں تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں تھا, اس لیے وہ دوزخ میں چلا گیا. میرے بھائیوں, جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتا ہے, وہ بلال حبشی سمجھ لیجئے ہو جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکے میں نہیں پیدا ہوئے تھے, وہ حبشے سے چل کے آئے تھے. کالے کلوٹے تھے, کوئی سردار نہیں تھے, کوئی خوبصورت نہیں تھے, نبی کے خاندانی نہیں تھے, نبی کی ولادت پہ کبھی خوشی نہیں منائی تھی. لیکن عشق نبی سے دل لبریز تھا, عشق نبی سے دل بالکل بھرا ہوا تھا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بلال ٹہلتا ہے مکے کی گلیوں میں اور قدموں کا کھٹکا جنت میں. سبحان اللہ. بھائیو, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں. ہم ایک کرتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں. کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا. کوئی یتیم یہ نہ کہنے پائے کہ میرے آقا یتیم نہیں تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا, اور جب آپ ننھے 4 برس کی ہوئے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا. میرے آقا نے یتیمی کا دور بھی دیکھا ہے. میرے آقا ہر موڑ پہ امتحان میں مبتلا رہے. میرے آقا کا فرمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے, جتنی سارے انبیاء کو تکلیف دی گئی اس سے کہیں زیادہ مجھ کو تکلیف دی گئی. لیکن میرے آقا کا طریقہ تھا, کبھی کسی کے لیے بد دعا کا لفظ نہیں اٹھایا, اور جب بھی نبوت والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے, میرے آقا نے فرمایا
अल्लाहुम्मा इहदा कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह ये मेरी कौम के नाफरमान लोग, ये मेरी कौम के नादान लोग, ये मेरी कौम के जाहिल लोग मेरे मर्तबे और मकाम से वाकिफ नहीं। ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा इहदा कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह ये नहीं अगर ईमान लाए तो शायद इनकी नस्लों में कोई ईमान लेवा पैदा हो जाए। ऐ अल्लाह इनको बेकार न छोड़िए। मैं क्यों इनके हक में तहरे इलाही की दुआ मांगूं, मैं क्यों इनके हक में तहरे इलाही की दुआ मांगूं। बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगूं। ये हुजूर का तरीका था। अगर कोई कहता हुजूर नबूवत वाले हाथ उठा करके बद्दुआ कर दीजिए, मेरे आका फरमाते ना ना बद्दुआ नहीं। अल्लाहुम्मा इहदा कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह ये हमारे मर्तबे से नहीं वाकिफ, ऐ अल्लाह ये हमारे मकाम से वाकिफ नहीं है, शायद इनकी नस्लों में कोई ईमान लेवा पैदा हो जाए। मेरे आका के खानदान में भी निकाह हुआ करते थे। जिस तरीके से हमारे समाज ने निकाह को बर्बाद करके रख दिया है, गरीब बच्चियों की जवानी के जनाजे निकल रहे हैं, वो जवान होकर घर में बूढ़ी हो रही है। मेरे भाइयों ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने नबी के तरीके को नहीं अपनाया है, सुन्नत को पीछे छोड़ दिया है, अपने राइज तरीकों को अपने गले से लगाया है, इसलिए हमारा गरीब मुआशरा तबाह हो रहा है। हमारी अगर बहन बेटियां अगर ससुराल में कहीं पर दुख तकलीफ में मुब्तला हो जाती हैं तो हमारे घर वाले तूफान खड़ा कर देते हैं, तूफान की बौछार कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी का हाल सुनो, जो खातूने जन्नत है, नबी मुकर्रम की चहेती बेटी है, सबसे ज्यादा फातिमा को मानते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि फातिमा बुज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा किसी बेटी के बारे में नहीं फरमाया, लेकिन खातूने जन्नत के बारे में फरमाया कि खातूने जन्नत फातिमा अल बुज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा जन्नती जवान औरतों की सरदार है। फातिमा हसनैन की अम्मा है, अली की बीवी है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में चक्की अपने हाथ से पीसा करती थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी अपने हाथ से लाती। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कपड़े अपने हाथ से धोती, अपने धोती, अपने बच्चों के धोती, अपने शौहर अली के धोती। और धोते धोते काम करते करते हाथ में घेठा पड़ गए, छाले निकल आए, वो छाले फूट गए। एक बार अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुई, रोती हुई हाजिर हुई। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से गुलाम आए हुए हैं। तो हजरत फातिमा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे अब्बा के पास कहीं से गुलाम आए हैं, मैं जाकर के दरखास्त करती हूँ, मैं जाकर के इल्तिजा करती हूँ कि मेरे महबूब अगर गुंजाइश हो गई एक गुलाम मुझे भी अता कर दिया जाए। और जाकर के खिदमत अक़दस में हाजिर हो गई। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, फातिमा की पाक चादर पे हजरत फातिमा जाकर के अर्ज करती हैं, मेरे प्यारे अब्बा जान मेरे हाथ देख लीजिए, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं चक्की पीसते पीसते। मेरे अब्बा जान फातिमा चाहती है कि कोई गुलाम दे दिया जाए। हजरत आयशा का बयान है कि जब फातिमा के जबान से निकला कि अब्बा मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं, तो आयशा का बयान है कि मैं रोने लगी और नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे महबूब आंखों से आंसू पोंछ रहे थे और फातिमा से कह रहे थे कि मेरी बेटी फातिमा उम्मत की गरीबी को सामने रखो और लो तुम्हें गुलाम से बेहतर चीज बताए देता हूँ। जब तुम सोने जाना, जब तुम नमाज के लिए जाना तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लेना, 34 मरतबा अल्लाहू अकबर पढ़ लेना और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना। ये कलिमात 100 हो जाएंगे जो तुम्हारे एक गुलाम नहीं 100 गुलामों से बेहतर होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों का हाल तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐश व इशरत की फरादानी है। हम क्या समझते हैं नबी हमारे कोई गरीब थे, अल्लाह ने सब कुछ नवाजा, अल्लाह ने सब कुछ नवाजा, लेकिन वो घराना ही क्या आलीशान था जिसने राह खुदा में सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये सब कुछ कुर्बान कर दिया।
دیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دعا بتا دیا, یہ ذکر بتا دیا, یہ تسبیح بتا دی, تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں. گھر میں دیکھا کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اپنے شوہر علی کو بلایا, ان کو ڈانٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, کچھ نہیں, پیار سے بٹھایا اور کہا کہ میرے شوہر سنو, گھر میں کچھ نہیں ہے, میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک تم چرخی لا دو, میں سوت کاٹا کروں گی, میں سوت بناؤں گی, ایک چرخی لا دو. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تجھے موقع کب ملے گا, تو کس رات بھر تو نماز پڑھتی ہے, رات بھر تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے, ساری رات تو اللہ اللہ کرتی ہے, بتا تو کس وقت چرخی کاٹے گی, تو سوت کس وقت تیار کرے گی. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں سب کچھ کر لوں گی, اپنے بچوں کو بھی دیکھ لوں گی, تمہارا بھی خیال کروں گی, رات کو اللہ کو بھی یاد کروں گی, تم چرخی لا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرخی لا کے دے دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن مسلسل چرخی سے سوت کاٹتی رہی, اور جب سوت تیار ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت نے کہا کہ میرے شوہر سوت تیار ہو گیا, میرے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, میرے گھر میں کوئی پینے کی چیز نہیں ہے, میرے علی یہ سوت لے کر جاؤ, بازار میں فروخت کر دو, اور جو پیسے ملے اسے سامان خرید لانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بازار میں سوت بکا 6 درہم کا. کتنے کا بکا؟ 6 درہم کا سوت بکا. 7 دن محنت کرنے کے بعد 6 درہم کا سوت بکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے, کہا فاطمہ 6 درہم کا سوت بکا. حضرت فاطمہ نے کہا بازار چلے جاؤ, سامان خرید لاؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں, دروازے کے پاس دیکھتے ہیں سائل کھڑا نظر آتا ہے, ایک فقیر نظر آتا ہے. فقیر نے صدا دی, اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے دماد حضرت علی, اس دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا ہے, کوئی بھکاری خالی نہیں گیا ہے. اے علی, اے خاتون جنت, میرا سوال ہے, میں قرض دار ہوں اور قرضہ والے مجھے پریشان کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرضہ دے دو, تم مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو, میرا قرض اتر جائے, بھیک دے دو, سائل ہوں, تمہارے دروازے سے جھولی بھر کے جاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ فاطمہ بیچاری 7 دن تک محنت کیا ہے, اس کے بعد 6 درہم حاصل ہوئے ہیں, لیکن فاطمہ کہے کہ کچھ نہیں, چلو دے دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے 6 درہم کی ضرورت ہے. یعنی جتنے حضرت علی کے پاس ہے اتنے ہی کی ضرورت اس سائل کو پڑ گئی. اس نے کہا 6 درہم کی ضرورت ہے. حضرت علی نے کہا لو 6 درہم ہمارے پاس ہیں, انہیں کو لے جاؤ, دے دیا. حضرت علی نے کہا اب بتاؤ کیا کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے نکل لیے گھر سے, اور راستے میں چلے. ایک گلی میں 2 آدمی ملے جو اونٹ لیے کھڑے ہوئے تھے, ایک بہت خوبصورت اونٹ لیے کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ علی ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہ اونٹ خرید لو, میرا اونٹ. تو حضرت علی نے کہا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کیسے خریدوں گا؟ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم ادھار ہی لے لو, یہ اونٹ لے لو, ادھار ہی لے لو, پھر دے دینا. حضرت علی نے فرمایا تم کتنے میں دو گے؟ کہا بس 100 درہم میں. کتنے میں؟ 100 درہم میں. غریبی کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں, اور اونٹ کیسے خریدیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی میرے سے 100 ادا نہیں ہوں گے, میرے پاس نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ادھار ہی میں دیے دیتا ہوں, اور لے جاؤ اور مجھے بعد میں دے دینا. حضرت اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ ہر لمحہ اس کی مدد کرنے پہ قادر رہتا ہے. ہمارے عمل کی انتہا تو رہتی ہے, لیکن اللہ کے دینے کی انتہا نہیں رہتی ہے. اللہ کی رحمت بے انتہا, ہمارا عمل محدود ہے اور اللہ کی رحمت لا محدود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ اونٹ لے لیا اور آگے بڑھے تو دوسری گلی میں 2 آدمی مل گئے. کہا کہ علی اونٹ بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچ رہا ہوں. ابھی یہ کہنے بھی نہیں پائے تھے, انہوں نے کہا کہ علی کیا قیمت لوگے؟ تو
حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی میں کوئی व्यापारी थोड़े हूँ, मैं कोई ये ताजिर आदमी थोड़े हूँ, इसका भाव मैं क्या जानूँ, आप ही लोग बता दीजिए कि आप क्या देना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि अली सुनो, मैं इसको 160 दिरहम में खरीदूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। हजरत अली ने फरमाया कि चलो भाई ठीक है ले लो। और खरीदा कितने में था? 100 दिरहम में खरीदा था, और बेचा कितने में? 160 दिरहम में। कितने पूरे बचे? 60 दिरहम नफा में बचे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी में, और ये सारा माजरा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां समझा रहे हैं। सारा माजरा मेरे महबूब को हजरत जिब्रील बता रहे हैं कि ये अली के साथ ये मामला पेश आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंच गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो दिरहम और दिनार लेके आए और फातिमा को पूरा वाक़िया सुनाया। हजरत फातिमा ने फरमाया कि ये अली जल्दी करो और ये जो बाकी दिरहम बचे हैं ले जा करके असहाबे सुफ़ा में तकसीम कर दो। असहाबे सुफ़ा जो नबी की हदीस का दर्स सीखा करते थे, नबी मुकर्रम की बारगाह में बैठ करके सुन्नते नबवी से फैज़ हुआ करते थे, वो गरीब बेचारे थे। हजरत फातिमा ने कहा ये शान एक खानदान नबूवत की शायान शान नहीं है कि ऐशो इशरत में हमारी जिंदगी पले। हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में पलने वाली नहीं, क्योंकि हमारे फैज से उम्मत की परवरिश होनी है, उम्मत परवरिश पाएगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत फातिमा से फरमाया कि हजरत हसन और हुसैन के हाथों में चांदी के कंगन देखे। कितने कहे के चांदी के कंगन देखे? हजरत हसन और हुसैन के हाथ में चांदी के कंगन देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन चेहरा फेर लिया और दरवाजे से वापस हो गए। हजरत फातिमा ने जब वापस होते हुए देखा तो रोने लगी और दौड़ती हुई बारगाह रिसालत में पहुंची। ये अब्बा जान क्या गलती हो गई मुझसे? अब्बा जान मुझसे क्या खता हो गई? वापस हो गए। मेरे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा ये खानदान नबूवत के शायाने शान नहीं है कि वो जेवरात दुनिया में पहने, वो खानदान नबूवत के शान नहीं है कि गरीबी की उम्मत मेरे उम्मत की गरीबी को मद्देनजर न रखा जाए। फौरन हसन हुसैन के हाथों से कंगन निकाल करके गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। फौरन गरीबों में तकसीम कर दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाकों पे खाके किए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि 40 दिन हो गए कि मेरे घर में चिराग तक नहीं जला है। अब जो लोग ऐशो इशरत में हम लोग बताओ कब सोचेंगे? मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि नाम सरकार का लेता हूँ, बस इसी नाम से मेरे घर में रहमत होगी। नाम सरकार का लेता हूँ, बस इसी नाम से मेरे घर में रहमत होगी। ये तेरा नाम वसीला है मेरे रंज गम में, बस इसी नाम से राहत होगी। ये सुना है कि बहुत दूर अंधेरी होगी, ये सुना है कि बहुत दूर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना आए दिल, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। मेरे भाइयों, वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। मुझे कोई खौफ नहीं, जन्नत का तलबगार नहीं। हजरत अली ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, मुझे जन्नत में कोई ख्वाहिश नहीं और दोजख से मैं डरता नहीं हूँ, कब्र से भी घबराता नहीं हूँ। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? सारी दुनिया जन्नत के तलब के लिए नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, तमाम नेक काम करती है। ऐ अली तुम जन्नत क्यों नहीं तलब करते? दोजख से क्यों नहीं डरते? और कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। ऐ अली तुम कब्र से क्यों नहीं घबराते? हजरत अली ने जो प्यारा जवाब दिया वो सुनो कि ऐ लोगों सुनो, मैं जन्नत नहीं तलब करता, जन्नत को बनाने वाले को तलब करता हूँ। जन्नत नहीं चाहता, जन्नत के बनाने वाले को चाहता हूँ। दोजख से नहीं डरता, दोजख के पैदा करने वाले से डरता हूँ। कब्र से नहीं घबराता, कब्र को बनाने वाले से घबराता हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मेरे भाइयों, जो नबी का शैदाई बन गया, मेरे आका का फरमान है, जो मेरा शैदाई बन गया, मैं और वो जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां साथ साथ में है। मेरे हम सबको
की शफाअत नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको आका की शफाअत नसीब फरमाए। आका मुकर्रम की जिंदगी हमारे लिए उसूल हसना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें सुन्नुल मुरसलीन में से हैं, जो अंबिया की सुन्नतों में से हैं। वो देखो क्या है। सबसे पहली बात, अंबिया सब बाहया हुआ करते थे, सारे अंबिया हयादार हुआ करते थे। नंबर 2, हज़ार तमाम अंबिया खुशबू ज्यादा पसंद किया करते थे। और नंबर 3, अल्लाह के नबी ने फरमाया सारा अंबिया अलैहिस्सलाम ने शादियां की हैं। निकाह करना सुन्नत नबवी है। अन निकाहु अफशुन निकाह, निकाह को आम करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लिया, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, वो मेरा वो मुझसे नहीं, मेरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुननुल मुरसलीन है उनको लाजिम पकड़ो, तुम्हारी कामयाबी उसी में है। सारे अंबिया बाहया हुआ करते थे, सारे अंबिया खुशबू इस्तेमाल करते थे, और तमाम अंबिया ने शादियां की हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बंदा शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, तो उसका अजर दुगुना बढ़ जाता है। कैसे? शादी से पहले, निकाह से पहले वो हुकूकुल्लाह अदा करता था, शादी से पहले वो नमाज पढ़ता था, शादी से पहले वो रोजा रखता था, शादी से पहले ज़कात देता था, शादी से पहले फितरा देता था, शादी के पहले अल्लाह अल्लाह करता था। लेकिन शादी के बाद जब निकाह हो गया तो एक अल्लाह का हक हो गया और दूसरे बंदे का हक हो गया, यानी अपनी बीवी का हक, अपनी बीवी का हक। अब अपनी बीवी का बोझ उठा करके अल्लाह अल्लाह करेगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस बंदे की समझ लीजिए नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है। और एक बात बता दूं, ईसाइयों के यहाँ औरतों को ये तालीम दी जाती थी कि आए औरतों की जमात सुनो, शादियां कभी न करना, शादियां कभी न करना, कुंवारे ही रहना। और मर्दों को ये तालीम दी जाती थी कि आए लोगों तुम निकाह न करना, शादी न करना, तुम कुंवारे ही रहना। यानी रहबानियत वाला पूरा सिस्टम अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला रहबानियत फी इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाता है वो जंगलों और पहाड़ों होके नहीं जाता है। उनका तरीका ये था कि अपने लोगों को तालीम देते थे कि अल्लाह के साथ जो अल्लाह अल्लाह करना है तो जंगलों में निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह करना है तो पहाड़ों में निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह कहना है तो शादी न करो, अगर अल्लाह अल्लाह कहना है तो शादी न करो, निकाह न करो। यानी अज़दवाजी जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर कोई रहबानियत नहीं है। इस्लाम में अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाता है, जो अल्लाह को पहचानवाने की रहनुमाई करता है, वो है रास्ता जाता है, गली कूचो होके निकलता है, घर घर होके निकलता है, पड़ोस होके निकलता है, महलों और कस्बों में के निकलता है, जंगलों में नहीं निकलता है। मेरे आका का फरमान सच्चा है, मेरे आका का फरमान क़यामत तक सच्चा रहेगा। जमीन और आसमान टूट फूट कर दरहम बरहम हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान झूठा हो सकता है? बताइए, अल्लाह के नबी का फरमान झूठा हो सकता? नहीं हो सकता है। हदीसों को हल्के में ना लिया करो। मैंने जो भी हदीसें आपको सुनाई हैं, अगरचे मैंने तर्जुमा सुनाया है, लेकिन इन हदीसों का ताल्लुक है किताबों में सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ का, जिसको बादा किताब असहुल कुतुबी बादा किताबुल्लाह कहा गया है। यानी अगर कुरान के बाद अगर मर्तबा आता है वो बुखारी शरीफ का आता है।
बुखारी शरीफ की हर हदीस मोतबर है, बुखारी शरीफ के जितने रावी हैं वो सब मुस्तनद हैं, उनकी बात पर एतमाद और भरोसा किसी शक व शुबा की बुनियाद पर किया जाएगा, वो अच्छी रिवायतें हैं मेरे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बात है हमारे लिए नमूना है, उनकी जिंदगी का हर एक दिन, उनकी जिंदगी का हर एक लम्हा, उनकी जिंदगी की हर चंद सांसें मेरे भाइयों हमारी जिंदगी में काम आने वाली होती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तसरन बड़े जल्दी अल्फाज में आपको समझा दूं कि वक्त भी हो रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ जो निकाह करने का तरीका था और आज जो हमारे यहाँ निकाह राइज है, इसमें उसमें फर्क कीजिए, जमीन व आसमान का फर्क नजर आएगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई, रिश्ता तय हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई और अल्लाह के प्यारे नबी का जो रिश्ता मुकर्रर हुआ है वो सारा का सारा आसमान से मुकर्रर हुआ है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रिश्ता मुतय्यन कर दिया है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दुल्हन बनने जा रही है, आज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दूल्हा बनने जा रहे हैं। जहेज तैयार होगा, वो जहेज कौन सा होगा आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हो जाऊंगा कि मेरी बहन बेटियां अपने घर से बेहतरीन सवारियां लेकर रुखसत होती हैं, बेहतरीन गाड़ियां लेकर रुखसत होती हैं, मेरी बहन बेटियां बेहतरीन डबल बेड और सोफा सेट और तमाम फ्रिज कूलर वगैरह के साथ अपने ससुराल को रुखसत होती हैं। कोई बात नहीं, कोई बुरी चीज नहीं है। आज कायनात के सरदार की बेटे की बारात आ रही है और फातिमा आज दुल्हन बनी है और नबी ने फरमाया कि अली थोड़ी हल्का सा जहेज का सामान तैयार करो। मेरे भाइयों हजरत फातिमा के जहेज के लिए जो सामान तैयार किया गया वो क्या है, 2 हाथ से पीसने वाली चक्कियां, जो हाथ से पीसने वाली चक्कियां होती हैं वो चरखी वाली चक्की और 2 तकिया, एक गद्दा मेरे भाइयों, उसमें खजूर की छालें भरी हुई थी। ये फातिमा का बिस्तर था और फातिमा ने एक दिन कहा मेरे आका एक ही बिस्तर है मेरे घर में, उसी को ओढ़ती हूँ और उसी को दिन में उस पर ऊंट को चारा देती हूँ। मेरे आका से फरमाया फातिमा ने कि अब्बा जान मेरे घर का आलम ये है कि जो मेरे पास बिस्तर है रात को उसी पर लेटती हूँ और सुबह को ऊंट को चारा भी देती हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा सब्र करो, दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से कई ज्यादा गुना बेहतर है और सब्र करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी एक चादर थी, तुम्हारे पास तो एक चादर और गद्दा भी है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ एक चादर थी, वो दोनों लोग उसी को ओढ़ते उसी को बिछाते और दिन में अपने ऊंट को उसी पर चारा खिलाते थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आज दुल्हन बन रही है। हमारी बहन बेटियां घर में दुल्हन बनती हैं तो कीमती जेवरात से मुज़य्यन होती हैं, कीमती जोड़े से मुज़य्यन होती हैं, जोड़ा तमाम पैसों का होता है। आज जो फातिमा खातूने जन्नत है, जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, वो दुल्हन बनी है, अजीब निराली दुल्हन है मेरे भाइयों। आज हमारे खानदान की कोई भी लड़की हो, अगर उसकी माँ जिंदा नहीं होती है तो उसकी चैनें उजड़ जाया करती है लड़की की, उसकी यादों में इजाफा हो जाया करता है। वो लड़की अपनी माँ को याद करके बार बार रोया करती है, काश आज मेरी शादी में मेरी माँ जिंदा होती, मुझे तसल्ली देती, तन्हाई की बातें बता देती, ससुराल में कैसे रहना है मेरी माँ होती मुझको बता देती। मेरी माँ मेरी बहन बेटियों की आहें निकल जाती हैं। खातून जन्नत आज 70 पेवंद वाला कपड़ा पहने बैठी है, खातून जन्नत आज 70 पेवंद वाला कपड़ा पहने दुल्हन बनी बैठी है। किसी औरत की जबान से निकल गया, किसी औरत की जबान से निकल गया, काश आज खदीजा जिंदा होती, काश आज खदीजतुल कुबरा जिंदा होती तो अपनी बेटी को अपने हाथों से नहलाती, अपनी बेटी को अपने हाथों से ये कपड़े पहनाती,
अपने हाथों से बेटी को खुशबू लगा दिया करती। हजरत एक औरत का बयान है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ये अल्फाज सुने, हजरत फातिमा अपनी अम्मा जान को याद करके रोने लगी और हजरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। कहा कि ऐ लोगों, इसकी फातिमा की माँ की ख्वाहिश थी, फातिमा की माँ खदीजा जब जिंदा थी तो वो तमन्ना किया करती थी, ऐ अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से सजाऊं। ऐ अल्लाह मेरी भी तमन्ना ये है, ऐ अल्लाह के नबी मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊं। लेकिन आज वो माँ दुनिया से रुखसत हो गई है, आज वो माँ दुनिया से रुखसत हो गई। फातिमा को कोई तन्हाई की बातें भी बताने वाली नहीं, दिलासा भी देने वाली नहीं, ससुराल का तरीका समझाने वाली आज कोई नहीं है। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी फातिमा के चेहरे को देखते, कभी हजरत खदीजतुल कुबरा को याद करके खूब रोते और बेटी को तसल्ली देती, बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी नस्ल में अल्लाह बरकत रखेगा और तुम्हारी नस्ल क़यामत तक इंशाअल्लाह चलेगी। यही हुआ कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो उम्मत नस्ल है क़यामत तक चलेगी। और मेरे भाइयों एक बात और याद रखो, जो आम तौर से हम सब उसको नहीं देखते हैं, हमारे यहाँ जो रिश्तों का इंतखाब होता है वो किस बिना पर होता है और सरकार ने हमारे किस रिश्तों को मुंतखब फरमाया है। हमारे यहाँ एक तरीका तो ये होता है कि हुस्न की बिना पर शादी किया जाता है, या तो माल और दौलत की बिना पर शादी किया जाता है, या तो उसके हसब व नसब की वजह से उससे शादी किया जाता है। अल्लाह के नबी ली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, हसब की बुनियाद पे जिसने शादी किया, जिसने हुस्न की बुनियाद पर निकाह किया, तो सुन लो कि ये हुस्न कितने दिन तक चलेगा। ये जवानी तो मिट जाएगी, अगर ये खूबसूरत चेहरे पर चंद छाले निकल आए तो तुम्हारे चेहरे पर कोई थूकने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करोगे तबाह हो जाओगे, अगर माल दौलत की बुनियाद पर रिश्ता करोगे तो तबाह हो जाओगे। खुदा न जाने किस वक्त गरीबी आ जाए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और तुम दीनदार औरत को लाजिम पकड़ो मेरे भाइयों, दीनदार औरत को लाजिम पकड़ो, वो तुम्हारे खानदान पर बड़ा असर पड़ता है। अरब का एक मुफक्किर था जो अपने बेटे से कहे